السلام علیکم۔ علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ماہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اے خالق دو جہاں ہم پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، آمین۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آزاد فضا میں سانس لینے والے 22 کروڑ عوام اپنے قائد کو شاندار خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ Many races, creeds and religions that inhabit vast subcontinent of India. There are two major nations, the Hindus and Muslims. برصغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ وطن کی شکل میں پاکستان جیسا عظیم تحفہ دینے والے قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز 1882 میں کیا۔ 1893 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ روانہ ہوئے، جہاں سے انہوں نے 1896 میں وکالت کا امتحان پاس کیا اور بیرسٹر کی ڈگری حاصل کر کے وطن واپس آئے۔ بابا قوم نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت سے کیا، تاہم 1913 میں محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ خود مختار ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کی خاطر مشہور 14 نکات پیش کیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی جرأت، انتھک محنت، دیانتداری، عزم مصمم، حق گوئی کا حسین امتزاج تھی۔ برصغیر کی آزادی کے لیے بابا قوم کا موقف دو ٹوک رہا۔ نہ کانگریس انہیں اپنی جگہ سے ہلا سکی اور نہ ہی انگریز سرکار انہیں خریدنے میں کامیاب ہو سکی۔ مسلمانوں کے حقوق اور علیحدہ وطن کے حصول کے لیے انتھک جدوجہد نے قائد اعظم کے صحت پر منفی اثرات مرتب کیے۔ 1930 میں انہیں تپ دق جیسا موذی مرض لاحق ہوا، جسے انہوں نے اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور چند قریبی رفقا کے علاوہ سب سے چھپائے رکھا۔ قیام پاکستان کے ایک سال بعد عظیم رہنما نے 11 ستمبر 1948 کو زیارت بلوچستان میں وفات پائی اور کراچی میں دفن ہوئے۔ جیکب آباد میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے موقع پر ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 145واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر شہر کا مارچ کیا اور پاک افواج کے حق میں نعرے بلند کیے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح دنیا اور مسلمانوں کے عظیم لیڈر تھے۔ ان کی پیدائش کے دن کے موقع پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت اور جدوجہد کی بدولت ہمیں آزاد ملک پاکستان ملا۔ سبی میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت انتہائی عقیدت اور احترام اور ان کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یوم قائد اعظم کی مناسبت سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مختلف سکولز کے طلباء اور طالبات کی جانب سے پینٹنگ مقابلے، ملی نغمے، تقاریر اور ٹیبلوز پیش کیے گئے۔ تقریب میں بانی پاکستان کو ان کی گراں قدر خدمات اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد اور خود مختار وطن پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کی گئی جدوجہد پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ تقریب میں حصہ لینے والے طلباء اور طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ لیا کے سرکاری اسکول میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے ملی نغمے پیش کر کے بابائے قوم کو خراج تحسین پیش کیا۔ رپورٹ کریں گے ظہور دورانی۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں یوم قائد کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شرکا نے قائد اعظم کے پاکستان بنانے میں انتھک محنت و کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا تو طلباء نے ملی نغمے پیش کیے۔ اس مملکت کو فلاحی اسلامی ریاست بنائیں، اس کے لیے کوشش کریں، جیسا کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ کام کام اور صرف کام۔ تقریب میں اساتذہ اور طلباء کی کثیر تعداد شریک ہوئی تو ننھے بچوں نے ملے نغمے گا کر سما باندھ دیا۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، ساٹ نیوز، لیا۔ توبہ ٹیکسنگ میں قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یوم قائد اعظم کی مناسبت سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے سلطان سدھو۔
टोबा टेकसिंग में भी बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश अकीदत व एहतराम से मनाया गया। यौम कायद आज़म की मुनासबत से DPS स्कूल के ऑडिटोरियम हॉल में महकमा तलीम की जानब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी सईद अहमद सैदी, डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद थे। तकरीब में हिस्सा लेने वाले तलबा तालबात ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में शुरका ने बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी ग्रां कदर खिदमात और बरसगीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद और खुद मुख्तियार वतन पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए की गई जद्दोजहद पर शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। ये मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम को कि जो कायद आज़म के फरमोदात हैं, अरशादात हैं, हमने उन पर इम्प्लीमेंट करना है। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सी। चकवाल में कायद डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात में तकारीरी मुकाबले भी मुनाकिद किए गए। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 145वें यौम पैदाइश के हवाले से तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें चकवाल के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के तलबा तलबात ने हिस्सा ली और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नजरियाती जद्दोजहद और पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात के मौजू पर तकारीर की। साल हर साल देरो हरम का तवाफ करती है, तब जाकर कोई रहनुमा वजूद में आता है। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर हायर एजुकेशन व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजा यासिर हुमायूं सरफराज थे, जिनका तकरीब आमदवर स्कूल के बच्चों ने इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था 25 दिसंबर के हवाले से कायद आज़म डे है और इसी हवाले से हमें जो कायद आज़म की सोच है उसको समझने की भी ज़रूरत है, उस पर अमल करने की भी ज़रूरत है। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने पाक फौज को सलाम और वजीर आज़म इमरान खान के विजन क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से टैबलो पेश की। आखिर में मेहमान खसूसी राजा यासिर हुमायूं सरफराज और आसिया अमजद ने व दीगर मेहमानों के साथ कामयाब तलबा तलबात में इनामात तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। तहरीक आज़ादी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी आज भी ढरकी की दरगाह में मौजूद है। ये गाड़ी किसी तारीखी एजाज से कम नहीं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। Many races, creeds and religions that inhabit vast subcontinent of India. There are two major nations, the Hindus and Muslims. वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी के लिए पीर आप भरचुंडी शरीफ पीर अब्दुर्रहमान का अहम किरदार रहा है। कायद मिल्लत बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दरगाह भरचुंडी शरीफ से खिदमत हासिल की, जिसमें पीर आप भरचुंडी शरीफ पीर अब्दुर्रहमान ने तहरीक आज़ादी में शमूलियत अख्तियार की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जहाँ जिस इलाके में जाते थे तो आप कोशिश ये करते कि अपनी जमात को उनके प्रोग्रामों में भेज के उनके प्रोग्रामों को कामयाब करवाने में आपका बहुत बड़ा किरदार रहा। तहरीक आज़ादी दौर कायद आज़म में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी आज भी दरगाह भरचुंडी शरीफ में मौजूद है, जो किसी एजाज से कम नहीं। अब्दुर्रहमान सिंह और बुरल सिंह, उनका तो बहुत बड़ा किरदार रहा है तहरीक में, पाकिस्तान की तहरीक में। ये गाड़ी जो है ये उनकी थी, साईं बुरल सिंह की थी, जो है ये भी बहुत इस तहरीक में इस्तेमाल हुई है। पाकिस्तान की सलामती के लिए पीर आप भरचुंडी शरीफ आज भी मुतहरिक है, जबकि डेरकी के शहरी हर साल की तरह इस साल भी आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल रऊफ के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेहरकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार जोश जज्बे से मना रही है। मुल्क भर में मजहबी तकरीबात का इनेकाद और गिरजा घरों में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। दुनिया भर की मसीही बिरादरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत जोशो जज्बे से मना रही है। पाकिस्तान भर में भी मसीही बिरादरी खुशियों का त्यौहार मनाने के लिए पुरजोश। गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों और फूलों के साथ निहायत खूबसूरती से सजाया गया है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी है, जिनमें मुल्क की तरक्की, अमन, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। बर्फ से ढके मकान और दरख्त, मुंह मीठा करने के लिए खुसूसी क्रिसमस केक। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए गिरजाघरों की सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। उधर मनावा में मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार जोश जज्बे के साथ मना रही है। गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों और खूबसूरत फूलों से सजा दिया गया। रिपोर्ट करेंगे मियां शेर मोहम्मद जरगर।
मानावाला में मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। मानावाला में गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों और खूबसूरत फूलों से सजाया गया। क्रिसमस त्यौहार के मौके पर बच्चों ने ड्रामे, टैबलियो और दुआए कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की और मानावाला गिरजाघरों में केक काटा गया और मिठाई भी तकसीम की गई। सिटी मानावाला में चर्च की तमाम जो रौनकें हैं वो दुबाला है और उसको हमने बड़ी जोश और खरोश के साथ सजाया है और उसके साथ हम आज पूरी इस्लाम को और तमाम अहले इलाका को हमारी तरफ से खुशियाँ, ईद की खुशियाँ ढेरों मुबारक हों। क्रिसमस के मौका पर थाना मानावाला पुलिस की जानिब से तमाम इबादतगाहों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम। प्रोग्रामों में बच्चे, बड़े और बुजुर्गों की खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में पास्टर सरफराज ने मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन और अमान और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की। मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। मोहब्बत और यगांगत का आलमी दिन मेरी क्रिसमस डे आलमी सतह की तरह नवाबशाह में भी मुकम्मल आज़ादी और नहायत ही जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मसीही बिरादरी ने चर्च के साथ साथ गली मोहल्ले को रंग बिरंगी झंडियों से, क्रिसमस ट्री को बरकमी कुमकुमों से और दिलकश अंदाज में सजाया गया है। ब्यूरो चीफ आसिफ रजा की रिपोर्ट देखिए। हर साल की तरह इस साल भी आलमी सतह की तरह पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों, गांव, देहातों में मौलूद यसू मसीह अलैहिस्सलाम पूरे एहतिमाम के साथ मनाया जा रहा है, जो मसीह बिरादरी के नजदीक खुशी का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे मुख्तलिफ नामों से, जिनमें नवाइल डे, यूल डे और नेटवी डे शामिल हैं, मगर जो सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ है वो क्रिसमस डे बड़े दिन के नाम से जाना जाता है। इस बड़े त्यौहार को मसीह बिरादरी मजहबी जोश जज्बे से मनाती है। क्रिसमस डे की तैयारी के लिए मसीह बिरादरी की खवातीन और मर्द, बच्चे और बूढ़े सभी नए कपड़े पहनते हैं। चर्च के साथ साथ घर, गली और महल्ले की ज़ेबाइश के लिए रंग बिरंगी झंडियों, क्रिसमस ट्री को बरकी कुमकुमों और चर्च के दाखिली रास्ते को खूबसूरती से दिलकश अंदाज में सजाते हैं। गिरजा घर में रात गए तक इबादत और दुआया तकरीब और मजहबी गीत का सिलसिला जारी रहता है। क्रिसमस ट्री, स्नोमैन, बर्फानी मुजस्समे और सांता क्लास के लिबास में मलबूस बच्चे तकरीब में आने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। क्रिसमस डे की तकरीब का इख्तिताम दुआया कलिमात के इन अल्फाज पर हुआ, रूहुल कुदूस यसु मसीह के सदके खुदावंद कुद्दूस मुल्क को सालमियत तो इस्तेकाम अता फरमाए। कैमरा टीम के हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, नवाबशाह। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने तहसील भर में गिरजाघरों का दौरा किया। सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और दीगर मामलात का तफसीली जायजा भी लिया गया। मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और इस मौके पर मसीही बिरादरी के साथ क्रिसमस का केक भी काटा। कम्युनिटी में मिठाई भी तकसीम की गई। डीपीओ कसूर की जानिब से तमाम गिरजाघरों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अहकाम जारी किए गए। मसीही बिरादरी की खुशियों में शामिल होकर उनकी खुशियों को 4 चांद लगा दिए गए। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी मसीही बिरादरी ने इबादतगाहों में खुसूसी दुआओं से क्रिसमस की तकरीबात का आगाज़ किया। दुनिया भर में मुकीम ईसाई बिरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार जोश जज्बे से मना रही है। इसी सिलसिले में हैदराबाद में कायम मसीही गिरजाघरों को दुल्हन की तरह सजाकर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों मर्द और ख़वातीन के अलावा बच्चों ने भी शिरकत की। जिला हैदराबाद के 40 गिरजाघरों की हिफाजत के लिए 600 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार और रेंजर्स के जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लोधरा में मसीही बिरादरी ने क्रिसमस डे मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जिला भर के गिरजाघरों में क्रिसमस के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर काजिम अब्बास। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह जिला लोधरा में भी मसीह बिरादरी ने क्रिसमस डे मजहबी अकीदत, एहतराम और जोश और जज्बे के साथ मनाया है। जिला भर के चर्चेज में क्रिसमस के हवाले से तकरीबात का इनकाद किया गया। तकरीबात में मसीह मर्द, खवातीन और बच्चों ने कसी तादाद में शिरकत की। तकरीबात के आखिर में मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा अब्दुल वहाब किसनानी की हदायत पर जिला भर के चर्चेज में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा अब्दुल वहाब किसनानी ने जिला भर के चर्चेज का दौरा किया। डीपीओ अब्दुल वहाब किसनानी ने चर्चेज के सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया और चर्चेज के सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल वहाब किसनानी ने मसीह भाइयों को क्रिसमस केक और फूलों के गुलदस्ते पेश किए और इन्हें मुबारकबाद दी। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी दुनिया पर मार अवैस इकबाल ने देगर म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान के हमरा मसीह भाइयों की खुशियों में शरीक होने के लिए चर्चेज का दौरा किए। चीफ ऑफिसर मार अवैस इकबाल ने मसीह भाइयों को क्रिसमस केक पेश किए और इन्हें मुबारकबाद दी। चीफ ऑफिसर मार अवैस इकबाल ने मसीह भाइयों के हमरा क्रिसमस केक
केक भी काटे। रेस्क्यू 1112 लोधरा के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद की हदायत पर रेस्क्यू 1112 के जवानों ने भी जिला भर के चर्चेज में ड्यूटी के फराज सर अंजाम दिए। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज़, लोधरा। सियालकोट में मसीही बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस जोश जज्बे के साथ मना रही हैं। गिरजाघरों में क्रिसमस के हवाले से खुसूसी तकरीबात का भी इनेकाद किया गया। तकरीबात में मसीही बिरादरी के मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीबात में शरीक मर्द, खवातीन और बच्चों के चेहरे खुशी से खिल रहे थे। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत के साथ साथ मसीही बिरादरी ने अपने मजहबी गीत भी गाए। तकरीब के दौरान मसीही बिरादरी ने मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की। तकरीबात के अख्ताम पर मसीही बिरादरी ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पुलिस की जानिब से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए थे और पुलिस के जवान तैनात भी किए गए थे। उधर मुजफ्फरगढ़ में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज हो गया। चर्च के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी क्रिसमस की तकरीबात का आगाज हो गया है। सेंट मैरिज चर्च में दुआया तकरीबात और मसीह बरादरी के साथ ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मिलकर केक काटा और सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग के बाद जाने दिया जा रहा है। चर्चेस की सिक्योरिटी के लिए 452 पुलिस एहलकार व अफसरान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। DSP और ताजर बरादरी ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से जो है दोबारा से ऑडिट करवाया गया IG साहब पंजाब की जानिब से यहाँ के तमाम चर्चेस वगैरह का, और उसके नतीजे में हमने यहाँ पर दोबारा ड्यूटी डिप्लॉयमेंट प्लान नए सिरे से इसको डिज़ाइन किया। हम सब लोग भी खुश हैं, तो जैसे हम अपनी ईदों को सेलिब्रेट करते हैं तो ये भी अपने क्रिसमस डे को वैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम इस अहद के साथ कि हम हमेशा साथ रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम साथ ही रहेंगे। आखिर में मुल्क को कौम की सलामती के लिए दुआ कराई गई। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। पाकपतन में मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार जोश खरोश से मना रही है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। रिपोर्ट करेंगे चौधरी तारिक। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी मसीही बरादरी का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया की जानब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जानब से गिरजाघरों, पार्कों की सिक्योरिटी के लिए 400 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। सिक्योरिटी को मॉनिटर करने के लिए DP ऑफिस पाकपतन में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। इस मौका पर DPO फैसल मुख्तार का कहना है, क्रिसमस के हवाले से पूरे पाकिस्तान की तरह ज़िला पाकपतन में भी क्रिसमस डे जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, जहाँ पर जो मेन तकरीबात हैं वो सिटी पाकपतन और तहसील आरफवाला में हैं। तमाम चर्चेस का सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो किया जा चुका है और वहाँ जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उनको हतमी शक्ल दी जा चुकी है। पाकिस्तान में अक़लीतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है ताकि वो अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकें। कैमरामैन दबी के साथ जो तारिक अली, सच TV, पाकपतन। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रोडू सुल्तान में क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर होने वाला कैनाल रेस्ट हाउस लाशारी इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। रेस्ट हाउस में मवेशी बांधे जाते हैं जबकि चारा काटने की मशीन भी नस्ब है। रिपोर्ट करेंगे गुलाम अब्बास। कनाल रेस्ट हाउस लाशारी क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर किया गया, मगर आज मुतालिका हुकाम की तवज्जो का मुंतज़िर है। कनाल रेस्ट हाउस लाशारी में मकामी अफराद ने मवेशी बांध रखे हैं जबकि चारा काटने की मशीन भी नस्ब की गई है। खूबसूरत रेस्ट हाउस मकामी अफराद के डेरे की सूरत इख्तियार कर चुका है। दूसरी जानिब इंतजामिया तमाम तर सूरत हाल से बाखबर ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। समाजी हलकों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सब्तान अब्बास साकी के साथ गुलाम बादशाह, सच न्यूज़, रोडू सुल्तान। चिन्योट का बाईपास रोड टूट फूट का शिकार हो गया। हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान कलियार। चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी शाहराहों की तमीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा दिखाई देने लगी। फैसलाबाद रोड से मोहल्का जंग बाईपास रोड पर पड़ने वाले गड्ढे खौफ की अलामत बन गए। मुख्तलिफ जगहों से कई फुट पड़ने वाले गड्ढे ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगे। फैसलाबाद बाईपास रोड, जंग रोड, लाहौर रोड समेत दीगर अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार होने से ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफा होने लगा है। राहगीरों का कहना है गड्ढे में गिरने से कई हादसात हुए लेकिन कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि चिन्योट की तमाम बड़ी शाहराहों की हालत को बेहतर किया जाए ताकि हादसात को कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चिन्योट।
शुजाबाद में ठेकेदार कई गलियों की खुदाई का काम अधूरा छोड़कर चलते बने। सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल होने से शहरी बिलबिला उठे। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे वजाहत हुसैन। शुजाबाद म्यूनिसिपल कमेटी शुजाबाद की आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम। म्यूनिसिपल कमेटी शुजाबाद और ठेकेदार के खिलाफ मोहल्ला बलोचावाला के रिहायशी सरापा एहतजाज। ठेकेदार गलियों की खुदाई करके काम अधूरा छोड़ गया। सीवरेज के पानी की वजह से इलाका मकीनों के घरों में दरारें और टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना था यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बरसों से ख़राब है। अभी चंद माह पहले ही यहाँ पे इसका ठेका अलाट हुआ है सीवरेज का, और यहाँ पे जो ठेकेदार है उसने बहुत ही नाकिस मीटर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये सारी सीवरेज लाइन चंद ही दिनों में फट गई और लोगों के घर बैठ गए। इलाका मकीनों की जानिब से म्यूनिसिपल कमेटी को मुत्तईद दरखास्तें भी दी, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी के सीईओ और सब इंजीनियर ने मौका देखने के बाद अहले इलाका की दाद रसी ना की। कैमरामैन मुबशिरुल हक के हमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज़ शुजाबाद। आरिफवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों को तिब्बी सहूलियात समेत तमाम अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया। शहरियों ने ऐसे इक़दाम पर खुशी का इजहार किया। रिपोर्ट करेंगे नज़ीर अहमद। आरिफवाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों को तिब्बी सहूलियात समेत तमाम अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है। आर्जी पनाहगाह और अद्वियात के अंबार, मरीजों समेत लवाहिकीन को फ्री खाना, ये सहूलत किसी और सरकारी अस्पताल में नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला अजहर तारिक वटूर MS डॉक्टर आसिफ जलीस के इस इकदाम से शहरी इनको ढेरों दुआएं दे रहे हैं। हमारा जो TSP हॉस्पिटल है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत के मुताबिक जो एमरजेंसी मेडिसिन हैं वो भी वाफर मिकदार मौजूद हैं। हमारा स्टाफ भी अपनी ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक हर वक्त मौजूद होता है। यहाँ का बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, हर चीज़ के साथ परमिट मिल रही है। मरीज के साथ का भी बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, उनकी भी परवाह हो रही है और बहुत अच्छा है। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर आसिफ जलीस ने बताया कि हुकूमत पंजाब की खसूसी हदायत पर अस्पताल में आने वाले मरीजों को अस्पताल ही से अद्वियात फराम की जा रही है और इस सिलसिले में तमाम इक़दाम को बरवे कार ला रहे हैं। THP अस्पताल आरिफवाला में तकरीबन तमाम दवाइयाँ मौजूद हैं और एमरजेंसी में हम हर किस्म की एमरजेंसी को फ्रीली मेडिसिन भी दे रहे हैं। मजीद इनका कहना है कि हम मरीजों को बहुत कम रेफर करते हैं और इनका इलाज इस अस्पताल में करते हैं। इनके लवाहिकीन को आर्जी पनाहगाह में ठहराते हैं और इनको खाना भी खिलाया जाता है। इस इकदाम को शहरी ने खूब सराहा। कैमरामैन फैज फरीद किच्ची के साथ नजीर अहमद खरैल, सच TV आरिफवाला। जेहलूं में पंजाब फूड अथॉरिटी ने सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ ऑपरेशन किया। फूड अथॉरिटी ने 110 किलो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त और 105 किलो अचार समेत मसाला जात को मौके पर तल्फ कर दिया। जेहलूं में शहरियों की जानों से खेलने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने चिकन शॉप्स, किरियाना स्टोर्स और गोदामों का मुआयना किया। सोहावा में कार्रवाई करते हुए गोदाम से मुज़र सेहत आचार बरामद करके मौके पर तलब कर दिया गया। मुर्दा और कम वजन मुर्गियों के गोश्त की फरोख्त पर पोल्ट्री शॉप पर भारी जुर्माना आयद किया गया। ममनू अशिया की स्टोरेज और कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर 3 किरियाना स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि मयारी खुराक की फराहमी के लिए हर सतह पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। नारंग मंडी में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद की किल्लत के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट करेंगे मियां मोहम्मद मुअज्जम नवाज। नारंग मंडी में खाद की किल्लत की वजह से किसान और ज़मींदार शदीद परेशान हैं। उनका कहना है कि हमें खाद नहीं मिलती, अगर मिले भी तो बहुत कम मिक़दार में और महंगी मिलती है। जहां पर हमने खाद के 10 तोड़े इस्तेमाल करना होते हैं, वहां पर हम सिर्फ 3 और 4 तोड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जल्द खाद की किल्लत पर काबू ना पाया गया तो आने वाले दिनों में गंदम का वसी बहरान पैदा हो सकता है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खाद जी जिमीदारों मिल नहीं रही, ठीक है, जो मिल रही है तो बहुत कम मिकदार से मिल रही है, ठीक है। और जो डीलर ने लिया के रातों रात अगे सेल कर देंगे ने। 22 किलो कणक अज खाद लैन वास्ते गया, 2 तोड़े खाद, 44 तोड़े चाहिए, मैंने 5 तोड़े खाद मिली है, 3200 का तोड़ा मिले आज। किसानों ने कहा कि खाद की किल्लत की वजह से हम शदीद परेशान हैं। हुकूमत खाद की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि आने वाले दिनों में किसी भी बहरान से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद मुअज्जम नवाज, सच न्यूज़, नारंग मंडी। कबीरवाला में खाद नायाब हो गई। किसान महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हैं। बर वक्त खाद ना मिलने की वजह से गंदम और दीगर फसलों की पैदावार भी मुतासर हो रही है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी राहील।
کھاد گندم کی فصل کی تیاری کے دوران ایک اہم جز کی حیثیت رکھتی ہے۔ پنجاب بھر کی طرح کبیروالا میں بھی ذخیرہ اندوزوں اور کھاد مافیا کی جانب سے کھاد کا بحران پیدا کر دیا گیا ہے۔ ایک جانب تو حکومت کی جانب سے کسانوں کو کھاد کی سرکاری ریٹ پر فراہمی کو یقینی بنانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، مگر دوسری جانب کسان اور کاشتکار کھاد نہ ملنے کا شکوہ کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں، اور اگر کھاد مل بھی رہی ہے تو سرکاری ریٹ کی بجائے یوریا کھاد 2600 سے 3000 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ ڈی اے پی 9000 تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی بارے میں کسانوں کا کہنا ہے کہ ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਮਾਫੀਆ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ 2600 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ 9000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ رہی ہے۔ کھاد کی بلیک میں فروخت کے باعث کسان کھاد کے بنا ہی گندم کو پانی لگانے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے 10 سے 15 من فی ایکڑ کاشت میں کمی کا امکان ہے۔ متعدد ڈیلرز نے مارکیٹ میں کھاد غائب کر کے مصنوعی قلت پیدا کر دی ہے اور مخصوص لوگوں کو منمانے ریٹ پر کھاد فروخت کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کسان اور کاشتکار خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت کسانوں اور کاشتکاروں کو کھاد کے سرکاری ریٹ پر فراہمی کو یقینی بنائے۔ ذمہ داروں اور کسانوں کا کہنا تھا کہ ہمیں کنٹرول ریٹ پر کھاد مہیا کی جائے تاکہ ہم اپنی گندم کی فصل اچھے طریقے سے تیار کر سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ چودھری راہیل ریاض، سچ نیوز، کبیروالا۔ مظفر گڑھ میں اسکارف کالونی کے ملازمین گزشتہ 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ تنخواہیں نہ ملی گئی تو بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ گزشتہ 5 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی، ایک طرف بڑھتی مہنگائی نے جینا اجیرن کر دیا تو دوسری جانب وقت پر تنخواہیں نہیں ملتی۔ تنخواہیں نہ ملنے کے باعث گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ کئی بار درخواست کے باوجود کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبات منظور نہ ہوئے تو دلیری بائی چوک بلاک کر دیں گی۔ خواتین نے اعلیٰ حکام سے ملازمین کو تنخواہیں دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹھری میرواہ میں کھاد کے بحران سے تنگ آ کر کاشتکار سڑکوں پر نکل آئے۔ کاشتکاروں نے کھاد نہ ملنے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ٹھری میرواہ کی سول سوسائٹی، کاشتکاروں اور شہریوں نے زرعی کھاد کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر کسان مزدور اتحاد پاکستان کے سربراہ اور دیگر کاشتکاروں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یوریا کھاد ڈیلروں کی جانب سے بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے۔ کھاد نہ ملنے کے باعث گندم کی فصل تباہ ہو رہی ہے۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ چوک سرور شہید میں کھاد مافیا کی شامت آ گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر کورٹ ادو اور پرائس مجسٹریٹ نے کھاد سے بھرے ٹرالے قبضے میں لے لیے۔ کھاد کی 2000 بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کورٹ ادو کی کھاد مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ناجائز منافع خور کھاد ڈیلروں کو ہزاروں روپے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ کھاد کی 2000 بوریاں برآمد کی گئیں۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کورٹ ادو عامر محمود نے اپنی نگرانی میں کسانوں کو سرکاری نرخوں کے مطابق کھاد فروخت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ کسانوں کے حقوق کا ہر سطح پر تحفظ کیا جائے گا۔ سناوا میں انتظامیہ نے کسانوں کی کھاد سرکاری ریٹ پر فروخت کرنا شروع کر دی۔ کسانوں نے انتظامیہ کے ایسے اقدام کو خوب سراہا۔ رپورٹ کریں گے منیر حسین۔ کھاد کے بحران پر قابو پانے کے لیے گورنمنٹ کے احکامات کے مطابق سناوا میں سرکاری عملہ کھاد ڈیلروں سے موقع پر پہنچ کر گورنمنٹ کنٹرول ریٹ پر کھاد فروخت کروا رہا ہے، جس سے کھاد خریدنے کے لیے کسانوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ کھاد نہ ملنے کی وجہ سے فصل مرنا شروع ہو گئی تھی۔ گورنمنٹ ریٹ تے سب کھاد شکر گزار ہیں، مہربانی گورنمنٹ نے سب کو اپنا شیڈول لیتے جانا، سب کو کھاد ملتی پی ہے، اللہ دی رحمت ہے۔ پہلے کھاد صرف ملتی نہ سب کو سارے فصل مرتے پے۔ کسانوں نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ کھاد کے بڑھتے ہوئے بحران پر قابو پایا جائے اور کسانوں کو کھاد کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ منیر حسین، سچ نیوز، سناوا۔ مٹیاری ڈسٹرکٹ بار کونسل کے سالانہ انتخابات فرینڈز لائر فورم نے الیکشن جیت لیا۔ ایڈوکیٹ بادل گاوٹی 118 ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے۔ سید شفیق شاہ 109 ووٹ لے کر جنرل سیکریٹری کے عہدے پر کامیاب ہو گئے۔ مٹیاری ڈسٹرکٹ بار کونسل کے سالانہ انتخابات فرینڈز لائر فورم نے الیکشن جیت لیا۔ ایڈوکیٹ بادل گاہوٹی صدر منتخب ہو گئے، 118 ووٹ لیے، جبکہ بھٹوز لائر فورم کے قربان بھٹو 62 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ سید شفیق شاہ نے 109 ووٹ لے کر حاصل کیے اور جنرل سیکریٹری کے عہدے پر کامیاب ہو گئے۔ بھٹوز لائر فورم کے سید علی اکبر 71 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ نائب صدر کے عہدے پر فرینڈز لائر فورم کے امداد میمن 101 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ بھٹوز لائر فورم کے اسلم میمن 80 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔
کمالیہ میں تجاوزات کی بھرمار ہو گئی، مرکزی شاہراہوں کے فٹ پاتھ پر رکشہ ڈرائیورز کے ڈیرے ہیں، شہریوں کا سڑکوں پر پیدل چلنا مشکل ہو گیا۔ اسی پر رپورٹ دیکھیے اسد راجپوت کی۔ کمالیہ شہر بھر میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہے۔ دکانداروں نے روڈ کے فٹ پاتھوں پر قبضہ جما رکھا ہے، جس کے باعث روڈ اور بازار مزید تنگ ہو چکے ہیں۔ آئے روز ٹریفک جام رہنا اور حادثات ہونا معمول بن چکا ہے۔ اس حوالے سے چیچا وطنی، رجانہ روڈ، کچہری روڈ، اقبال بازار، صدر بازار، دلی چوک سر فہرست ہیں۔ ایک دن اگر انتظامیہ کارروائی کرے بھی تو دوسرے دن پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ ناجائز تجاوزات کے سبب بازار میں آئے دن شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ عوام حکام بالا سے اپیل ہے کہ ناجائز تجاوزات کو ختم کروائیں اور عوام کے لیے بہتری کا ماحول پیدا کریں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گلیاں بازار پہلے ہی تنگ ہیں، دکاندار اپنی دکانیں چھوڑ کر روڈ پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، جس کے سبب بازار گلیاں مزید تنگ ہو چکے ہیں اور ٹریفک جام سمیت دیگر مسائل جنم لے رہے ہیں۔ انتظامیہ ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے فی الفور اقدامات کرے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اس صورتحال پر فی الفور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محسن ندیم کے ساتھ اسد راجپوت، ساچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ ٹریفک پولیس لیا کم عمر ڈرائیورز کے خلاف متحرک ہو گئی، متعدد موٹر سائیکلز تھانے میں بند کر دی گئیں، رکشہ ڈرائیورز کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ لیا میں بڑھتے ہوئے حادثات کی روک تھام اور عوام کی بار بار شکایات پر ڈی پی او نے نوٹس لیتے ہوئے ٹریفک پولیس کو کم عمر ڈرائیورز کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر مہم شروع کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے کم عمر رکشہ، موٹر سائیکل چلانے والے ڈرائیورز کو پکڑ کر جرمانے کیے اور وارننگ بھی دی۔ ڈسٹرکٹ انچارج کا کہنا تھا کہ والدین سے اپیل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ڈرائیونگ سے باز رکھیں۔ کم عمر ڈرائیوروں کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں اور قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ چونیا کے تھانہ کنگن پور سرکل پولیس کی بڑی کارروائی، خطرناک ڈکیت گینگ ظفر عرف ظفری کی سرغنہ سمیت 3 کارندے گرفتار کر لیے گئے۔ نفس درجن موٹر سائیکلیں اور شہریوں سے چھینی ہوئی ہزاروں روپے نقدی رقم اور قیمتی موبائلز بھی برآمد کر لیے۔ سرکل چونیا کے تھانہ کنگن پور کے چوکی انچارج طیب یوسف سیال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ خطرناک ڈکیت گینگ کے سرغنہ ظفر عرف ظفری سمیت 3 اراکین کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے ملزمان سے نفس درجن موٹر سائیکلیں، شہریوں سے لوٹی ہوئی ہزاروں روپے نقدی سمیت مہنگے ترین موبائلز برآمد کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا۔ پکڑے جانے والے اشتہاری گینگ کا سرغنہ ظفر عرف ظفری مختلف تھانوں میں سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملوث تھا، جو پولیس کو کافی عرصے سے مطلوب تھا۔ چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا، کوٹ ادو تھانہ سٹی کی حدود میں چوروں نے بجلی کے چلتے ٹرانسفارمر سے قیمتی سامان لے لیا۔ کوٹ ادو میں چوروں کا راج برقرار ہے۔ بستی مبارک والا میں چوروں نے دوسری واردات کی ہے۔ چوری کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ مبارک پور اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اہل علاقہ نے چوروں کے خلاف کارروائی کرنے اور بجلی کو جلد بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ حیدرآباد میں میگا فیملی فیسٹیول کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ میوزک، ثقافتی سٹالز، مینا بازار اور پلے فن لینڈ میں عوام ایک ہفتے کریں گے موج۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت پر بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاکستان آرمی اور ضلعی انتظامیہ کے اشتراک سے 7 روزہ میگا فیملی فیسٹیول کی تیاریاں مکمل کر کے شہر کی واحد تفریح گاہ رانی باغ کو برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجا دیا گیا، جبکہ شہر سمیت سندھ بھر کی عوام فیملی فیسٹیول میں ملک کے نامور فنکاروں کی پرفارمنس سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ مینا بازار، پلے لینڈ، فن لینڈ، پھولوں کی نمائش، ثقافتی نمائش سمیت نت نئے پکوانوں کے بھی مزے لیں گے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ رینجرز اور پاک افواج کے جوان بھی حفاظتی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ سچ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ۔